Yes, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about structure of mycoplasma. Very important topic. नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी बार पूछा जा चुका है. माइकोप्लाज्मा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनते हैं. तो देखिएगा जरा, माइकोप्लाज्मा की जो डिस्कवरी की थी, discovered by Nocard and Rox in 1898. That is very important point. डिस्कवरी की थी नोकार्ड एंड रॉक्स ने और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली सीन. दैट इज प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, pneumonia causing organism. So they are actually the pneumonia causing organism. One of the most important feature that is cell wall is absent. Very important point. Cell wall is absent in case of mycoplasma. But actually जो mycoplasma की टर्म दी थी वो टर्म दी थी नोवैक नाम के साइंटिस्ट ने. इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द टर्म mycoplasma was given by Novak. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. तो इसके ये फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा से लिंक करके. तो देखिएगा जरा, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा में आपको क्या नजर आएगा? सेल वॉल इज अब्सेंट. द आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल इज टोटली अब्सेंट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ऑब्वियसली सेल वॉल अब्सेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. बट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा is the plasma membrane is basically three layered. Very important point. The three layered plasma membrane, one layer, second layer and third layer. So due to the absence of cell wall, they can change their shapes. ये अपनी shapes change करते रहते हैं. So they are known as paleomorphic bacteria. They are also called paleomorphic organism. तो देखिएगा, सेल वॉल absent होने की वजह से ये अपनी शेप्स को वेरी करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. सो दे आर नोन एज पीलियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, पीलियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाने जाते हैं. सो थ्री लेयर नोट कीजिएगा. एंड द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन. सो इट इज लाइपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन इज बेसिकली सीन in case of mycoplasma. Very important point. Always be remember that mycoplasma shows some resemblance with eukaryotes also. They also show some resemblance with fungi and other eukaryotes. Okay, so lipoproteinaceous cell wall देखने को मिलेगी. Next point, 70S का राइबोसोम आपको नजर आने वाला है. 70S राइबोसोम, you know very well about ribosome is known as protein factory of a cell and it is the universal cell organelle. Which one is the universal cell organelle that is found, that is present everywhere? 70S ribosome. Ribosome is basically universal cell organelle. 70S ribosome is basically seen in case of mycoplasma. Now one of the interesting point that is it contains DNA and DNA is fibrillar type. फाइब्रिलर टाइप क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए आपको नजर आ रहा है. फाइब्रिलर डीएनए एंड द वन एंड ऑफ फाइब्रिलर डीएनए possess a disc like structure. You can see easily in the diagram that is a disc like structure is present in fibrillar DNA. One end of fibrillar DNA contains a disc like structure. This disc like structure is known as replicating disc and through replicating disc it possess its replication. Means the process of formation of DNA to DNA. DNA से DNA बनाना, that is known as replication. आप इसके डिटेल्स हायर क्लासेस में बहुत बार आप पढ़ेंगे. डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ये रेप्लिकेट इटसेल्फ होता रहता है. So due to the presence of replicating disc, इसके बाद सेल्फ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है. सेल्फ रेप्लिकेशन कैसे होगा? या तो प्लाज्मिड के थ्रू होगा और यहां किसके थ्रू? यहां आपको रेप्लिकेटिंग डिस्क के थ्रू देखने को मिलेगा. वन स्ट्रैंड ऑफ soluble RNA is also present. So both DNA as well as RNA is also present. One strand of soluble RNA. But soluble RNA very important question. कई बार स्टेटमेंट में आया हुआ है कि डीएनए प्रेजेंट होता है माइकोप्लाज्मा के पास, या आरएनए प्रेजेंट होता है, या बोथ प्रेजेंट होता है, या फिर सोल्यूबल आरएनए प्रेजेंट हो. सोल्यूबल आरएनए इज प्रेजेंट along with DNA in case of mycoplasma. Next, some soluble proteins also
You can see in the diagram some soluble proteins. It also contains some soluble proteins, and this one is the cytoplasm. Cytoplasm आपको देखने को मिल रहा है. These are the various parts of cell structure in case of mycoplasma. Now, due to the absence of cell wall, it is pleomorphic in nature. It can change its shape, size and structure. The organism which can change its shape, size, structure, that is known as pleomorphic organism. So due to the absence of cell wall, now one of the most important feature, अब ऐसी एंटीबायोटिक के नाम याद कीजिए जो सेल वॉल पर अटैक करके उसको ब्रेक करती है. अब यहां तो सेल वॉल है ही नहीं, तो इट मींस ऐसी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को ब्रेक करती है, देन वो किल करती है बैक्टीरिया को. ऐसी एंटीबायोटिक सेल वॉल, यहां सेल वॉल नहीं होने से वो ब्रेक नहीं कर पाएगी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज पेनिसिलिन. नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ऑन माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमें ऐसी एंटीबायोटिक चाहिए कि जो मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगी, देन आप ओवरकम कर पाएंगे. अदरवाइज आप माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन से ओवरकम नहीं कर पाएंगे. They lacks mesosomes. Mesosomes हमने पढ़ रहे थे ना बैक्टीरिया में. The infolding of plasma membrane is known as mesosomes. They are of two types, central mesosomes, उसके बाद peripheral mesosomes. जिसने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो हमारी YouTube चैनल सूरज एजुकेशन ग्रुप पे जाकर आप इजिली वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, mesosomes का बैक्टीरियल सेल का डायग्राम. So mesosomes are basically absent in case of mycoplasma. Next, they are the smallest living cell known. Smallest, very very important question. Smallest living cell 0.1 आपको mu m size देखने को मिलेगा, इसका 0.1 only. Now, one of the most important character, that is they reproduce with the help of binary fission. They reproduce with the help of binary fission के थ्रू ये अपना reproduction करते हैं. You know very well about binary fission. When the parent body is divided into two equal half, that is known as binary fission. Now, एक एनसीईआरटी की लाइन जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे एनटीएससी लेवल का एग्जाम, चाहे नीट लेवल का एग्जाम, चाहे वो किसी एंट्रेंस लेवल का एग्जाम, बीएससी एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस, और कई बार सीएसआईआर नेट में भी ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. They can survive without oxygen. Very very important. आज ही अपने ब्रेन में ये क्वेश्चन फिट कर लीजिए. विदाउट टर्म लगानी, कई बार एग्जामिनर उसको विद ऑक्सीजन लिख देता है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होकर रॉन्ग करते हैं. They can survive. Mycoplasma can survive without oxygen. Without oxygen से भी ये सर्वाइव कर लेते हैं. Okay, they are also called MLO. That is molecule like organism. Molecules like organism भी इनको हम बोलते हैं. Now, they can infect both plants as well as animals. You know very well about PPLO, pleuropneumonia like organism, pneumonia causing agent animal में. लेकिन वो plants में कौन सी डिजीज करते हैं माइकोप्लाज्मा? So आपको both का आंसर करना है. They can infect both plants as well as animal. They can cause disease on both plants as well as animal. Animal में आप लिखेंगे pneumonia, और plants में जो disease होती है that is known as witch's broom. Witch's broom, WITCHES, witch's BROOM, witch's broom. Witch's broom के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको जैसे कोई, जो आपने देखे होंगे कि बर्ड्स हैं वो घोंसला बनाते हैं ना, ऊपर घोंसला बनाते हैं, तो उस शेप में आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी. स्टेम की डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, और वो आपको कि बर्ड के नेस्ट की तरह निकलकर नीचे आ जाएगा. बर्ड के नेस्ट की तरह निकलकर जब वो नीचे आ जाएगा, दैट इज नॉन एज विचेज ब्रूम. सो विचेज ब्रूम इज द कॉजिंग एजेंट. कौन सा देखने को मिलेगा? माइकोप्लाज्मा के थ्रू होती है. प्लांट्स के अंदर डिफॉर्मिटी ऑफ स्टेम, द बर्ड नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन एज विचेज ब्रूम. सो दीज आर द वेरियस इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट माइकोप्लाज्मा. आई थिंक आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे
जाते हैं। सूरज एजुकेशन ग्रुप हर स्टूडेंट के साथ है, किसी भी टाइम पर, एनी सर्कमस्टांसेस हम सभी आप लोगों के साथ है। और ऑनलाइन स्टडी करना आज के इस युग की 2020 से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऑनलाइन स्टडी एक बहुत ही अच्छा और बहुत नेसेसरी प्लेटफॉर्म सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। इन फ्यूचर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, आप हमें मैसेज कीजिए, हम उसका एक बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो आपका नीट लेवल का कोई हो, चाहे वो आपका टॉपिक एनटीएससी लेवल का हो, चाहे वो एमएससी लेवल का हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट लेवल का हो, हम सारी स्टडी हम नीचे से लेकर और ऊपर तक टोटल सूरज एजुकेशन ग्रुप हमेशा हर स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशन ग्रुप की साइट को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।